फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज सेकेंड यूनिट फटाफट रिवाइज करेंगे। तो सेकेंड यूनिट में सबसे पहला चैप्टर है, मींस चैप्टर नंबर 5 है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें एक साइंटिस्ट गिवन है। तो सबसे पहले इन साइंटिस्ट को थोड़ा सा देखते हैं। कैथरीन इसाऊ। Catherine Isau was born in Ukraine in 1898. She studied agriculture in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 in United States. She reported in her early publications that the curly top virus spreads through a plant via the food conducting या phloem tissues. Dr. Isau's plant anatomy, published in 1954, took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the discipline. The Anatomy of Seed Plant by Catherine Isau was published in 1960. तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट कैथरीन इसाऊ के द्वारा कब पब्लिश्ड हुई थी? 1960 में. इट वॉज रिफर टू एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी. इट इज़ encyclopedic. In 1957, she was elected to the National Academy of Sciences, becoming the sixth woman to receive that honor. In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989. When Catherine Isau died in the year 1997, तो एक साइंटिस्ट थे पीटर रावेन, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, Missouri Botanical Garden, remembered that they absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. तो कैथरीन इसाऊ के बारे में बस इतना ही हमें पढ़ना है। एक बार रीडिंग कर लेंगे इसको। अब देखते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। The wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, even though the angiosperms show such a large diversity in external structure या morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant or for that matter any living organisms, we need to know standard technical terms and standard definition. We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptation of the plants to their environment. जैसे कि example है adaptation to various habitats for protection, climbing, storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, जबकि portion above the ground forms the shoot system. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रूट सिस्टम पढ़ना है। द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। मीन्स जो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनता है उसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो कि ग्रो करता है सॉइल के अंदर। इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रिफर टू एज सेकेंडरी, टर्सरी, एक्सेट्रा रूट्स. The primary roots and its branches constitute the taproot system as seen in the mustard plant. तो taproot system किस में देखने को मिलता है? mustard plant में. In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. और इस प्रकार के रूट को जो इस प्रकार का ये लार्ज नंबर ऑफ ढेर सारे रूट निकलते हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम. और इस प्रकार के रूट को फाइब्रस रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये किस में देखा जाता है? फाइब्रस रूट सिस्टम वीट प्लांट में देखने को मिलता है। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में क्या होता है, जैसे कि ग्रासेज, मोन्स्ट्रा एंड दी बनियान ट्री में जो रूट होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स. तो इनमें जो है एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलता है. द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर absorption of water and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. तो ये हमें याद रखने हैं कि रूट का मेन फंक्शंस क्या होता है. अब यहाँ पे रूट में कौन कौन से रीजन देखने को मिलते हैं वो देखते हैं
की रीजन ऑफ द रूट। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, जिसको हम लोग रूट कैप के नाम से जानते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉयल। ए फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। The cells of this region are very small, thin-walled and with dense protoplasm। तो याद रखना है यहाँ पे ये कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन होता है वहाँ की सेल्स कैसी होती हैं। They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and the enlargement and are responsible for the growth of the root in the length. This region is called the region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence इस प्रकार this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation। जैसा कि इस फिगर में हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रीजन ऑफ मेचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये तीनों रीजन यहाँ पे दिखाए गए हैं। फ्रॉम दिस रीजन, अब यहाँ जो मेचुरेशन रीजन है क्या हो रहा है इसमें, सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। तो यहाँ पे अब जो है रूट के ये तीनों रीजन ख़त्म होते हैं। अब इसका रूट का मॉडिफिकेशन देख लेते हैं कि रूट अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करता है। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड to perform functions other than absorption and conduction of the water and minerals। जैसे they are modified for support, storage of food and respiration। Tap root of the carrot, turnip and adventitious roots of the sweet potato get swollen and store food। तो फूड के स्टोरेज के लिए ये टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स दोनों ही फूड के स्टोरेज के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। कैन यू हैव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? Have you ever wondered what those hanging structures that support a banana tree are? These are called prop roots। और similarly इसी प्रकार the stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem। और इस प्रकार के रूट को हम लोग स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। और इस प्रकार के रूट को हम लोग निमेटोफोर्स के नाम से जानते हैं, जो कि ये किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीजन, गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में निमेटोफोर्स का रूट जो होता है ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब यहाँ पे हम लोग रूट सिस्टम ख़त्म कर लिए। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है स्टेम। तो देखते हैं स्टेम कैसा होता है। द स्टेम, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश्ड ए स्टेम फ्रॉम ए रूट? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, while internodes are the portion between two nodes. The stem bears buds which may be terminal या axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches bearing leaves, flowers and fruits. It conducts water, minerals and photosynthesis. Some stems क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं the functions of storage of food, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो स्टेम के बारे में इतना ही। अब देखते हैं कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कैसा है। द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। तो इन सब के स्टेम में फूड का स्टोरेज देखने को मिलता है। They also act as organ of perennation to tide over conditions unfavorable for growth। जो स्टेम टंडल होता है जो किससे डेवलप्स होता है, फ्रॉम एक्सिलरी बड से, जो कि सिलेंडर होता है, स्पायरली क्वाइल्ड एंड हेल्प करता है प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गॉड्स, जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन या वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स में ये देखने को मिलता है। Auxiliary buds of stem may also get modified into woody, straight and pointed thorns। जो थॉर्न होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन मेनी प्लांट, जैसे कि सिट्रस और बोगनविलिया में थॉर्न देखने को मिलते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। सम
प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड मीन्स अपुंसिया या फ्लैसी सिलेंड्रिकल मीन्स यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स। तो फ्लैटेंड स्टेम किस में देखने को मिलता है? अपुंसिया के पौधे में, और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है वो यूफोर्बिया के प्लांट को में देखने को मिलता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी etc. spread to new niches, and when older parts die, new plants are formed. In plants like mint and jasmine, a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि पिस्टिया एंड आइकॉर्निया में देखने को मिलता है। इन बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में क्या होता है? द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजेंटली विनीथ द सॉयल एंड देन कम आउट ऑब्लिक्यूली अपवर्ड गिविंग राइज टू न्यू लीफी शूट्स। तो बस स्टेम में भी हमें इतना ही पढ़ना था। अब यहाँ पे हम जो है थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, लीफ। तो देखते हैं लीफ। द लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टम। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सियल, जो कि एक्सिलरी बड होता है। ए लेटरल डेवलप्स इनटू ए ब्रांच। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral small leaf-like structure जिसको हम लोग stipules के नाम से जानते हैं। In monocot में क्या होता है? The leaf base expands into a sheath covering the stem partially या wholly. इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे जो है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है? लीफ बेस में बिकम स्वॉलन विच इज कॉल्ड दी पल्विनस। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, देयर बाय कूलिंग एंड लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। द लैमाइना या लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ with veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as the midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport of water, minerals and food materials. The shape, margin, apex, surface and extent of inclusion of lamina varies in different leaves. तो बस लीव्स के बारे में भी इतना पढ़ना है। अब देखते हैं कि वेनेशन क्या होता है। वेनेशन क्या होता है? दी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन दी लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। व्हेन दी वेनेशन फॉर्म ए नेटवर्क दी वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। व्हेन दी वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन लैमिना दी वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल वेनेशन। तो लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली पॉजेज रेटिकुलेट वेनेशन, जबकि जो मोनोकॉट प्लांट की लीव्स होती हैं वो मोस्टली उनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स मीन्स पत्तियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर या व्हेन इंसीज्ड। द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब। व्हेन द इंसीजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स, द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। A bud is present in the axial of petiole in both simple and compound leaves, but not in axial of leaflets of compound leaf. The compound leaves may be of two types. जैसे कि पहला है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जिसमें क्या होता है, जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है ये नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कंपाउंड कॉमन एक्सिस, जिसको रैकिस कहते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। जैसा कि नीम के पौधे में हमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। और सेकेंड टाइप का होता है पामेटली कंपाउंड लीव्स। इसमें क्या होता है, जो लीफलेट होती हैं अटैच्ड होती हैं एक कॉमन पॉइंट से एट द टिप ऑफ पेटियोल, जैसा कि सिल्क कॉटन में हमें देखने को मिलता है पामेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये दो प्रकार की लीव्स हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिलोटैक्सी।
मीन्स लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम या ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। तो अल्टरनेट टाइप में क्या होता है, अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, जबकि ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, जैसा कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर के प्लांट में देखा गया है। जबकि अपोजिट टाइप में क्या होती है, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल इट इज़ कॉल्ड होल्ड, जैसा कि एलिस्टोनिया में देखने को मिलता है होल्ड लीफ। अब यहाँ पे हम जो है लीव्स का भी मॉडिफिकेशन देखते हैं कि लीफ कैसे मॉडिफाई करता है अपने आप को। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज और आर इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई। द फ्लैसी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। तो फ्लैसी लीव्स अनियन और गार्लिक में दोनों में पाई जाती हैं, जो कि फूड के स्टोरेज में हेल्प करती हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड synthesize food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves. अब यहाँ पे हम लीव्स के बाद जो है देखते हैं कि इन्फ्लोरिसेंस क्या होता है। इन्फ्लोरिसेंस, ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Internode do not elongate and the axis gets condensed. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. When shoot tip transform into a flower, it is always solitary. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. तो इन्फ्लोरेसेंस भी यहाँ पे 2 प्रकार का देखने को मिलता है। क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू ए फ्लावर या कंटिन्यू टू ग्रो, 2 मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेज आर डिफाइंड, दैट इज रेसिमोज एंड साइमोज। अब रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली इन एन एक्रोफिटल सक्सेशन। और साइमोज टाइप में क्या होता है कि इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाती है इन ए फ्लावर में, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर। अब लीव्स भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, इन्फ्लोरेसेंस भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द सॉलन एंड ऑफ द स्टॉक या पेडिसिल, जिसको हम लोग थैलमस या रिसेप्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दीज आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये 4 फ्लावर के होल हो गए। कैलिक्स और करोला को हम लोग एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जबकि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इन सम फ्लावर्स जैसे कि लिली में क्या होता है, दी कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। व्हेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेन और ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। तो ये 2 प्रकार के फ्लावर भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अब यहाँ पे फ्लावर की सिमेट्री देख लेते हैं कि फ्लावर में सिमेट्री कैसी होती है। इन सिमेट्री फ्लावर्स में भी एक्टिनोमार्फिक दैट इज़ रेडियल सिमेट्री या जाइगोमार्फिक दैट इज़ बाइलेटरल सिमेट्री। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज़ सेड टू बी एक्टिनोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक मीन्स जो है रेडियल सिमेट्री हमें किस में देखने को मिलती है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली के प्लांट में। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। तो इस प्रकार की सिमेट्री को जाइगोमार्फिक कहते हैं। और जाइगोमार्फिक मीन्स बाइलैटरल सिमेट्री हमें पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया के प्लांट में देखने को मिलती है। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक मीन्स कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं देखने को मिलती है, इर्रेगुलर होता है। इफ़ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 सिमिलर हाफ्स बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंटर। तो इस प्रकार का मीन्स इर्रेगुलर फ्लावर जो है हमें एक प्लांट होता है कैना का, उसमें देखने को मिलता है।
ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस व्हेन दी फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 या 5th. Flowers with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bract तो उसको ebracteate कहते हैं. Based on the position of calyx, corolla and androsium in respect of the ovary on thalamus, फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया गया है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस कंडीशन में. तो हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, गाइनीशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट. और इसमें ओवरी कैसी होती है, इस प्रकार के फ्लावर में ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है और ये मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलता है. हाइपोगाइनस फ्लावर जो होता है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलता है. इफ गाइनीशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called perigynous. तो ओवरी इस प्रकार की पेरीगाइनस फ्लावर में जो होती है ओवरी कैसी होती है, हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है और ये प्लम, रोज और पीच में देखने को मिलता है. इपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है, द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रोज अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी completely and getting fused with it. The other parts of the flower arise above the ovary. और इस प्रकार की ओवरी को हम लोग इन्फीरियर ओवरी कहते हैं. और जैसे कि किस फ्लावर में देखने को मिलता है, गुआवा एंड कुकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. इसमें जो है हमें जो है ओवरी इन्फीरियर देखने को मिलती है और फ्लावर कैसा होता है, एपीगाइनस फ्लावर होता है. अब यहाँ पे हम फ्लावर के पार्ट देखते हैं कि ये अभी जो हमने पढ़े कि फ्लावर के होल कितने होते हैं, तो चारों होल के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे. कैलिक्स क्या होता है, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स. जनरली सेपल्स जो होते हैं ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. कैलिक्स में भी गैमोसेपलस मीन्स सेपल्स अगर यूनाइटेड हैं. कैलिक्स पॉलीसेपलस भी हो सकता है अगर सेपल्स फ्री हैं. अब यहाँ पे सेकेंड होल है कोरोला. कोरोला इज कम्पोज्ड ऑफ पेटल्स और पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. लाइक कैलिक्स, कोरोला में आल्सो भी गैमोपेटलस मीन्स पेटल्स यूनाइटेड हो सकते हैं या पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिल सकती है मीन्स पेटल्स फ्री हो सकते हैं. The shape and color of the corolla vary greatly in plants. Corolla में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड या व्हील शेप्ड का हो सकता है. अब यहाँ पे देखेंगे कि एस्टिवेशन. तो क्या होता है एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन फ्लावर बड्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन. द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेल वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट एंड वैक्सिलरी. व्हेन सेपल्स या पेटल्स इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, जैसा कि कैलोट्रॉपिस में देखा गया है. तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को वेलवेट एस्टिवेशन के नाम से जाना जाता है. और अगर इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड कहते हैं. और अगर इफ़ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स या पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैसिया एंड गुलमोहर, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं. इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स. द लार्जेस्ट जिसको स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, ओवरलैप्स द 2 लैटरल बड्स जिसको विंग्स कहते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप्स द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जिसको कील के नाम से जानते हैं. इस प्रकार के एस्टिवेशन को जो है हम लोग वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन कहते हैं, जो कि पी और बीन में देखने को मिलता है. तो ये हो गया एस्टिवेशन. अब हम लोग थर्ड होल पढ़ेंगे एंड्रोसियम. तो देखते हैं क्या होता है एंड्रोसियम. जो एंड्रोसियम होता है वो कंपोज्ड होता है स्टेमन्स का, मीन्स स्टेमन्स का मिलके बना होता है एंड्रोसियम. और ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन consist of a stalk, ORRA, filament and an anther. Each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers. The pollen sacs. अब pollen grains are produced in pollen sacs. स्टेराइल स्टेमन को हम लोग स्टेमिनोड के नाम से जानते हैं. Stamens of flowers may be united with other members जैसे कि petals,
या among themselves. When stamens are attached to the petals, they are epipetalous, जैसा कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है. या एपीफिलस कंडीशन भी हो सकती है when attached to the perianth as in flowers of lily. तो लिली के फ्लावर में एपीफिलस कंडीशन देखने को मिलती है. The stamen in a flower may either remain free, मीन्स पॉलीएंड्रस कंडीशन हो सकती है, या मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज. अब स्टेमन में भी यूनाइटेड इनटू वन बंस या वन बंडल, तो उसको हम लोग मोनो एडल्फस स्टेमन के नाम से जानते हैं, जो कि चाइना रोज कंडीशन में देखने को मिलती है. और अगर टू बंडल्स मीन्स डाई एडल्फस कंडीशन होगी तो ये पी प्लांट में देखने को मिलता है. और अगर मोर देन टू बंडल्स बनाती है तो ये पॉलीएडल्फस कंडीशन होती है, जो कि सिट्रस के प्लांट में देखने को मिलता है. देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन ए फ्लावर एज इन साल्विनिया मस्टर्ड. तो साल्विनिया और मस्टर्ड के प्लांट में क्या होता है, इनके जो है फिलामेंट में ही जो है वेरिएशन देखने को मिलता है. अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ होल पढ़ेंगे गायनोसियम. तो देखते हैं क्या होता है गायनोसियम. गायनोसियम एक प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, एंड इज मेड अप ऑफ वन या मोर कार्पेल्स. अब एक जो इसमें कार्पेल होता है उसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ओवरी जो होती है इनलार्ज्ड बेसल पार्ट होती है, ऑन व्हिच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल. द स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी टू द स्टिग्मा. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द receptive surface for the pollen grain. Each ovary bears one or more ovules attached to the flattened cushion-like placenta. When more than one carpel is present, they may be free, जो कि लोटस और रोज में देखने को मिलता है. और इस प्रकार हम लोग उसको एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं. दे आर टर्म्ड सिन कार्पस. अब ये सिन कार्पस कंडीशन कब देखने को मिलती है, व्हेन कार्पेल आर फ्यूज्ड, जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटो में जो है हमें सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मेच्योर इनटू ए फ्रूट. अब यहाँ पे हम सारे होल फ्लावर के पढ़ लिए. अब यहाँ पे हमें पढ़ना है प्लेसेंटेशन. तो क्या होता है प्लेसेंटेशन, देखते हैं. दी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. दी प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, वेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. तो इतने प्रकार के प्लेसेंटेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है. तो मार्जिनल में क्या होता है, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर वन ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी, जैसा कि पी के पौधे में देखने को मिलता है. व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलॉकुलर ओवरी, द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल, जैसा कि चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में देखने को मिलता है. इन पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल में क्या होता है कि ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ORR ऑन पेरीफेरल पार्ट. ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल सेप्टम, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन. और जब व्हेन द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, तो ये कंडीशन हमें डाईएंथस और प्राइमरोज में देखने को मिलती है. और इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को जो है फ्री सेंट्रल के नाम से जानते हैं. अब बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, जैसा कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के प्लांट में देखने को मिलता है बेसल प्लेसेंटेशन. तो प्लेसेंटेशन भी खत्म हो गया, मीन्स फ्लावर के सारे पार्ट हमने खत्म कर लिए. अब हमें यहाँ पे देखना है फ्रूट. द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. इट इज मेच्योर या राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल मीन्स पेरिकार्प एंड सीड्स. द पेरिकार्प में बी ड्राई या फ्लैसी. और जब पेरिकार्प थिक और फ्लैसी होगा तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर इंडोकार्प में डिवाइड होगा. जैसा कि इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप. दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड. In mango, pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp,
ए मिडिल फ्लैसी एडिबल जो कि होता है मीजोकार्प, एंड एन इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प इन कोकोनट विच इज आल्सो ए ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो फ्रूट भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीड क्या होता है। सीड द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड्स। सीड जो होता है मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो होता है मेड अप ऑफ ए रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 या 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो 1 कॉटिलिडन्स वीट और मेज में देखने को मिलता है, 2 कॉटिलिडन्स ग्राम और पी के प्लांट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है कि सीड जो होता है वो 2 तरीके से होता है, डाइकॉट का सीड और मोनोकॉट का सीड, अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडनस सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड इज द सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 layers मीन्स आउटर टेस्टा और इनर टैगमेन। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू which द डेवलपिंग सीड्स वेयर अटैच टू द फ्रूट। एबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर जिसको हम लोग माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं। Within the seed coat is the embryo consisting of an embryonal axis and 2 cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. At the 2 ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. In some seeds जैसे कि कैस्टर में क्या होता है, endosperm formed as the result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic seeds. इन प्लांट्स जैसे कि बीन, ग्राम और पी में जो इंडोस्पर्म होता है नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स। तो कैस्टर में इंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है और बीन, ग्राम और पी के प्लांट में हमें नॉन इंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड्स मीन्स मोनोकॉटिलिडनस सीड्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। जनरली देखा जाए तो मोनोकॉटिलिडनस सीड्स जो होते हैं ये इंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन इंडोस्पर्मिक। इन दी सीड्स ऑफ सीरियल्स जैसे कि मेज दी सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। द इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ द इंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनेशियस लेयर जिसको एल्यूरान लेयर के नाम से जानते हैं। The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon जिसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं and a short axis with a plumule and a radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheath which are called coleoptile and coleorhiza respectively. अब सारे फ्लावर के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का। तो ये देख लेते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। वेरियस मार्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। जैसे द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मीन्स रूट, स्टेम एंड लीव्स, and then floral characters, inflorescence and flower part. After describing various parts of a plant, a floral diagram and a floral formula are presented. The floral formula is represented by some symbols. In the floral formula, BR स्टैंड करता है ब्रैक्टिएट के लिए, K स्टैंड करता है कैलिक्स के लिए, C स्टैंड करता है कोरोला और P जो होता है पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है एंड्रोसियम और जी जो है गायनीसियम को रिप्रेजेंट करता है। और जी के नीचे अगर डंडा लगा है तो फार सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करती है, और जी के ऊपर डंडा लगा है तो फिर ये इन्फीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करती है। ये स्ट्रक्चर जो होता है मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो होता है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और ऐसा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बाईसेक्सुअल प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। और क्रॉस है अगर किसी गोले के अंदर ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करती है, और परसेंटेज का जो है साइन है तो ये जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई इनक्लोजिंग दी फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडहेशन बाई ए लाइन ड्रॉन अबव द सिम्बल्स
of the floral parts. A floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and the relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. अब यहाँ पे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल, कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट एंड द गाइनेसियम बीइंग इन द सेंटर. अब जो फ्लोरल फार्मूला होता है आल्सो सोन कोहेसन एंड एडहेसन विद इन द पार्ट्स ऑफ होल एंड बिटवीन होल. द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है मस्टर्ड को. मस्टर्ड प्लांट जो कि किस फैमिली के अंतर्गत आता है, ब्रैसिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है. अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिली दी हैं, इसको भी फटाफट देख लेते हैं. तो देखते हैं कि सबसे पहली फैमिली है यहाँ पे फैबेसी. इसमें क्या होता है, ये फैमिली दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनेसियस. ये सब फैमिली या फैमिली लेग्यूमिनेसी. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड. तो इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है इस फैमिली का देखते हैं. ट्री, सर्ब, हर्ब, रूट विद रूट नोड्यूल्स होता है और स्टेम इसका इरेक्ट और क्लाइंबर होता है. और जो लीव्स होती हैं अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड या सिंपल लीफ हो सकती है. लीफ बेस पल्विनेट, स्टिपुलेट, वेनेसन, रेटिकुलेट हो सकता है. अब इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं. फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर इन्फ्लोरिसेंस. जो इन्फ्लोरिसेंस होता है रेसिमोज होता है. फ्लावर बाइसेक्सुअल और जाइगोमार्फिक होगा. कैलिक्स, सेपल्स इसमें 5 होंगे. गैमोसेप्लेस कंडीशन होगी. वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा. कोरोला में क्या होता है, पेटल्स 5 होंगे. पॉलीपेटलस कंडीशन होगी. पेप्लियोनेसियस कोरोला होता है इसका. और कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, 2 लैटरल विंग्स, 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग ए कील्स, इनक्लोजिंग स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स. और वैक्जिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है. और इसका एंड्रोसियम जो होता है इसमें 10 होते हैं और डायडल्फस कंडीशन होती है. एंथर जो होता है डाईथिकस होता है. और गाइनेसियम जो होता है ये इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, मोनोकार्पेलरी होता है, यूनिलॉकुलर विद मेनी ओव्यूल्स. और स्टाइल जो होता है वो सिंगल होता है. अब इसमें फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम होता है. सीड 1 to many या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है. अब फ्लोरल फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स जाइगोमार्फिक कंडीशन है. फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल है. कैलिक्स 5 और यूनाइटेड हैं. कोरोला 1 + 2 यूनाइटेड हैं. और एंड्रोसियम 9 यूनाइटेड होते हैं +1 फ्री होता है. गाइनेसियम 1 मीन्स ओवरी सुपीरियर है. अब इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है कि मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेज. मीन्स ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल. सोयाबीन और ग्राउंड नट जो होते हैं ये एडिबल ऑयल होते हैं. और डाई के रूप में एक इंडिगो फेरा नाम की डाई होती है. और फाइबर्स के रूप में सन हेम्प होता है. और फूडर के रूप में सेसबानिया और ट्राइफोलियम होते हैं. और आर्नामेंटल्स के रूप में ल्यूपिन, स्वीट पी. और मेडिसिन के रूप में मुलेठी का पौधा होता है. तो बस इस फैमिली में इतना ही था. अब सेकंड फैमिली है सोलेनेसी, जो कि एक लार्जर फैमिली है. इसको कॉमनली पोटैटो फैमिली के नाम से जानते हैं. और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन, तीनों ही जोन में ये देखने को मिलती है. अब इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली हर्ब, सर्ब एंड रेयरली स्मॉल ट्री भी हो सकते हैं. इसमें स्टेम जो होता है हर्बेसियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड या हालो हो सकता है. हेयरी या ग्लैब्रस हो सकता है. अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो मीन्स सोलैनम ट्यूबरोसम में अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है. और इसकी लीव्स क्या कैसी होती हैं, अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होता है. और वेनेसन जो होता है ये रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है. अब इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं. इसमें इन्फ्लोरिसेंस जो होता है सॉलिटरी, एक्जिलरी या साइमोज होता है, जो कि सोलैनम में देखने को मिलता है. फ्लावर बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमार्फिक होता है. कैलिक्स में जो है सेपल्स 5 होते हैं, वो भी यूनाइटेड होते हैं. परसिस्टेंट कैलिक्स होता है और वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है. कोरोला इसमें पेटल्स 5 होते हैं, वो भी यूनाइटेड होते हैं. और कोरोला में भी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है. एंड्रोसियम में क्या होता है, स्टेमेंस 5 होते हैं और एपीपेटलस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है. और गाइनोसियम में क्या होता है, बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होते हैं वो भी. और सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलॉकुलर होती है. प्लेसेंटा सोलन होता है विद मेनी ओव्यूल्स. और
गाइनोसियम में एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और इसका फ्रूट जो होता है बेरी और या कैप्सूल हो सकता है। और सीड्स जो होते हैं इसमें बहुत ढेर सारे होते हैं और इंडोस्पर्मिक सीड होता है। फ्लोरल फार्मूला इसका है कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है, बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर, कैलिक्स 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे, कोरोला भी 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे, एंड्रोसियम भी 5 होगा। और क्योंकि इसमें एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। और गाइनोसियम जो होगा वो 2 होगा और ओवरीज इसकी भी सुपीरियर ही होगी। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस फैमिली की क्या है कि मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। स्पाइस के रूप में चिली यूज़ होता है, मेडिसिन के रूप में बेलाडोना और अश्वगंधा यूज़ होता है, और फ्यूमिगेटरी के रूप में टोबैको का प्लांट होता है, और ऑर्नामेंटल के रूप में जो है पेट्यूनिया का प्लांट ऑर्नामेंटल के रूप में यूज़ होता है। अब इसमें लास्ट फैमिली एक बची है लिली एसी, जिसको हम लोग कॉमनली लिली फैमिली के नाम से जानते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैमिली क्या है कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। अब इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होता है वो पेरेनियल हर्ब विद अंडरग्राउंड बल्ब या कॉर्म या राइजोम्स होते हैं। और इसकी लीव्स मोस्टली बेसल अल्टरनेट लीनियर एक्स एस्टिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन। अब इसमें फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसा होता है देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो सॉलिटरी या साइमोज होता है, ऑफन अम्बलेट क्लस्टर्स के रूप में पाया जाएगा। और फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। जो पेरियंथ की कंडीशन होगी इसमें टेपल 6 होते हैं, मीन्स 3+3 वो भी यूनाइटेड होते हैं, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। और जो होता है वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एंड्रोसियम की कंडीशन इसमें भी स्टेमन 6 होते हैं, 3+3 कंडीशन होती है, एपीटेपलस कंडीशन होती है। अब गाइनोसियम जो होता है ये ट्राइकार्पलरी होता है, सिनकॉर्पस ओवरी सुपीरियर इसमें भी होती है, ट्राइलॉक्यूलर होती है विद मेनी ओव्यूल्स, और प्लेसेंटेशन जो होता है इसमें एक्साइल होता है। और इसका फ्रूट कैप्सूल होता है, और रेयरली कभी कदा क्या होता है बेरी भी हो सकता है। सीड इसका एंडोस्पर्मस होता है। और फ्लोरल फार्मूला जो होता है इसमें ब्रैक्टिएट कंडीशन होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। और जो इसमें कैलिक्स और करोला में जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, इसलिए इसमें पेरियंथ की कंडीशन 3+3 होती है, वो भी यूनाइटेड होती है। और एंड्रोसियम भी 3+3 होता है लेकिन वो फ्री होता है। और गाइनोसियम भी इसमें 3 लॉक्यूल होते हैं, मीन ट्राइकार्पलरी होता है, और ओवरी जो होती है इसकी सुपीरियर होती है। अब इस फैमिली का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है इसमें क्या होता है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स, जैसे कि ट्यूलिप और ग्लोरियोसा होते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन के रूप में एलोवेरा जाना जाता है। वेजिटेबल्स के रूप में एस्परागस का यूज़ करते हैं। एंड कॉल्की सीन एक कॉल्किनम ऑटुमनेल्स इससे जो है निकाला जाता है कॉल्चीसीन नामक प्लांट से। तो बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू।